We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। I want to begin with a few questions. मैं कुछ सवाल के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। Are you in trouble? क्या आप परेशानी में फंसे हुए हैं? Oh, what are you asking at the very beginning of this program? ओह, आप इस प्रोग्राम के शुरुआत में ये सब कुछ क्या पूछ रहे हैं? Oh, there is a reason behind it. हाँ, निश्चय इसके पीछे एक कारण है। Are you happy? क्या आप खुश हैं? ये सवाल है। Oh, this is another question you need to think about. ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। And is anyone sick? और क्या आपके घर में कोई बीमार हैं? Oh, there are so many I know who are sick. ओह, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं। You may answer like that. शायद आप इस तरह उत्तर दें। Oh, I have an old father who is sick. ओ मेरे बूढ़े पिताजी बहुत ही बीमार हैं। Oh, I have my sister who is sick. ओ मेरी बहन बीमार है। Oh, you may answer it very differently. शायद आप इसे अलग अलग तरीके से उत्तर दें। But James is asking this question. लेकिन याकूब ये सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। You know, when you come to the book of James, we have been speaking from the book of James, which is a very, very practical and relevant book that is applicable even in the 21st century. हम याकूब की पत्री से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। याकूब यहाँ पर ऐसे सवाल पूछ रहा है जो कि इस 21वीं सदी में भी बहुत ही उपयोगी हैं। In the book of James, chapter 5, verses 13 to 18, we read about the value of praying in faith. याकूब अध्याय 5 वचन 13 से 18 में हम विश्वास से प्रार्थना करने का मूल्य क्या है इसके बारे में यहाँ पर हम सीखते हैं। You know, he's asking the same questions. Let me read the 13th verse. You probably will understand why I asked those questions. अब चलिए 13 वचन हम पढ़ते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछे। Is anyone among you in trouble? यदि तुम में कोई दुखी है, James gives an answer. याकूब हमें यहाँ पर उत्तर देता है, Let him pray. तो वो प्रार्थना करें। And he continues on by asking, is anyone happy? और फिर आगे वो पूछता है, यदि आनंदित हैं, And he gives an answer, let them sing songs of praise. तो वो स्तुति के भजन गाए, इस तरह कहता है। And the next question he moves on to in the 14th verse. अगले वचन 14 में वो कहता है, Is anyone among you sick? यदि तुम में कोई रोगी है, ये कहता है। James answers that question by saying, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. याकूब कहता है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। My dear friends, what he is basically saying is, in our life, we have all these troubles, sickness, and also happy moments. दोस्तों, वो सामान्य रूप में यही कह रहा है कि हमारे जीवन में परेशानियां होती है, बीमारियां होती है और खुशी के पल भी होते हैं। Life is a mixture of all these. जीवन तो इन सभी बातों का मिक्सचर, इन सभी बातों को मिलाकर बनता है। James takes it up so beautifully and communicates to us what we should do in those circumstances. याकूब इसे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। And very, very importantly, he's saying, if someone is suffering, और खास करके वो कहता है, यदि कोई परेशान है। it says, if any one of you in trouble, वो कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है, let him pray or let them pray. तो वो प्रार्थना करे, वो सब प्रार्थना करें। And a prayer that is offered in faith is very, very useful and yielding its results. और जो प्रार्थना विश्वास से की जाती है वो उपयोगी है और वो परिणाम लाती है। The idea is you should not suffer alone. और इसमें विचार तो यही है कि आप अकेले ही दुख उठाते न रहें, इस तरह ये कहता है। I should not suffer alone. मुझे अकेले दुख नहीं उठाना है। And you have someone to go to. और आपके पास कोई है जिसके पास आप जा सकते हैं। That's what James is suggesting to us here. याकूब यहाँ पर हमें यही सलाह दे रहा है। See, when you are in trouble, you pray. There is God to take care of you. There is God to help you. That is what he is saying. जब आप परेशानी में होते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी परवाह करने के लिए निश्चय ही परमेश्वर है। You pray. आप खुद प्रार्थना कीजिए। You can also get others to pray. आप दूसरों को प्रार्थना के लिए कह सकते हैं। A lot of prayer
requests are coming even in our program. हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा हमें बहुत से प्रार्थना निवेदन निश्चय ही आते हैं। Thank you for those who are calling and asking us to pray for various needs. जो हमें फोन करके अलग अलग जरूरतों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, आप सभी का धन्यवाद। And definitely God is answering our prayers. निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। In our program, what we are saying is, this struggle that you're going through, you're not alone. God is with you and we are with you. हम ये कह रहे हैं, आप जिन परेशानियों से जाते हैं उनमें आप अकेले नहीं, परमेश्वर और हम आपके साथ में हैं। That's the way God created all of us. परमेश्वर ने इसी तरह से हम सबको बनाया है। We are all dependent beings. हम सब आधारित रहने वाले व्यक्ति हैं। We depend on God. हम परमेश्वर पर आधारित We हैं, depend on others. दूसरों पर आधारित हैं। We need each other. हमें एक दूसरों की जरूरत है। James so beautifully says, if you are in trouble, you pray. याकूब सुंदर रीति से कहता है, अगर आप परेशानी में तो आप प्रार्थना कीजिए। And that prayer must be offered in faith. और ये प्रार्थना तो निश्चय ही विश्वास से की जानी चाहिए। At the same time, he also talks about, when you pray, he gives another option, you pray by anointing the person with oil. एक और पर्याय बताता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप तेल मलकर प्रार्थना कीजिए। You may wonder, what is this we are talking about? शायद आप सोचें हम किस बारे में कह रहे हैं। Perhaps some of you have experienced this in your churches or among Christian groups. You would have seen that people are given oil to pray and it is applied over. आपने अपनी कलीसिया में या ऐसे समूह में देखा होगा कि लोगों को तेल देते हैं ताकि वो प्रार्थना करें, लोगों पर उसे लगाएं। In the Gospels, there is an example we see. सुसमाचार में निश्चय एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं। In the Gospel of Mark chapter 6 verses 11 and 12, मरकुस अध्याय 6 वचन 11 और 12 में the context is Jesus was sending out his 12 disciples to various regions to share about the good news. He gave them authority over evil spirits. यहाँ पर संदर्भ ये है कि यीशु अपने चेलों को भेजते हैं कि वो जाकर अलग अलग प्रांतों में सुसमाचार सुनाएं, और उसने दुष्टात्माओं पर उन्हें अधिकार दिया था। In the 11th and 12th verse, let me read it for you. It says, they went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. मरकुस 6:12 तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। इस तरह कहता है। And they applied oil and healed many people. उन्होंने तेल मलकर बहुत से लोगों को चंगा किया था। If you look at our culture, particularly the Indian culture, we are a material driven culture. देखिए, अगर आप हमारी परंपरा को देखें, भारतीय परंपरा को, तो हम वस्तु के द्वारा चलाई जाने वाली परंपरा हैं। People are more interested in bringing some things and oil to be prayed over when gospel is preached. लोग दिलचस्पी लेते हैं कि जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो वो साथ में तेल लेकर आते हैं। And people have come to me with that. और लोग उसके साथ मेरे पास आए हैं। It is a very important fact. I always point out that there is no power in the oil. ये सच्चाई है, मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ कि तेल में कोई भी सामर्थ नहीं होती है। It's coconut oil is coconut oil. ये नारियल का तेल है तो वो बस नारियल का ही तेल है। Don't place your faith in this bottle of oil. आप अपना विश्वास तेल की बोतल पर मत रखिए। Suppose you may say, oh, if the bottle of oil is not important, why God commanded? शायद आप कहें तेल की कुप्पी बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं तो परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी है। I agree, sometimes God uses material things. मैं सहमत हूँ कि परमेश्वर कई बार वस्तुओं का उपयोग करते हैं। I want you to know that trusting in God alone is the way for receiving blessing from Him. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल परमेश्वर पर भरोसा करके ही आप उससे आशीषों को पा सकते हैं। So James is talking about prayer offered in faith. यहाँ पर याकूब विश्वास से प्रार्थना करने के बारे में कहता है। Prayer offered with applying oil. तेल लगाकर प्रार्थना करने के बारे में कहता है। And then he continues on by saying prayer of confession. और फिर आगे वो कहता है कि अंगीकार की प्रार्थना करते चले जाएं। In the 16th verse he says, वचन 16 में कहता है, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। And confessing our sins is very, very important for healing.
देखिए, हमारे पापों का अंगीकार करना ये तो हमारी चंगाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, Because when we confess, we are taking off the load and the guilt that is within us and handing it over to God. क्योंकि जब हम अंगीकार करते हैं तो हम दोष भावना का वो बोझ हम पर से उठाकर परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। In the book of 1 John chapter 1 verse 9 we read like this. पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, इस तरह से वचन कहता है। Jesus Christ is willing to forgive and heal us from all unrighteousness if we confess our sins. अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अधर्मों से हमें छुड़ाने के लिए तैयार हैं। Dear friends, that is part of the healing we need. दोस्तों, हमें आत्मिक रीति से इस तरह ठीक होना है। That's the relief from the trouble that we are going through. जिन परेशानियों से जाते उससे छुटकारा पाना है, And that's when you will become more happy. और तभी तो आप सच में ज्यादा खुश हो जाएंगे। Psalmist very beautifully confesses in 32nd chapter, Psalm 32. भजन संहिता 32 में भजनकार अंगीकार करता है। In the verses 3 to 5, he says like this, when I kept silent, my bones wasted away. वचन 3 से 5 में कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। इस तरह से यहाँ पर भजनकार हमें बताता है। It says, through my groaning all day long, for day and night, your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। इस तरह से वचन हमें बताता है। So what James is saying is all these are interconnected. देखिए, याकूब जो कह रहा है और ये सारी जो बातें हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। If you really want to get deliverance, you have to do all these. अगर आपको सच में छुटकारा चाहिए तो आपको ये सब कुछ करना होगा। You pray in faith. आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए, Confess your sins. अपने पापों का अंगीकार कीजिए, In faith, apply oil and pray. विश्वास से तेल मलकर प्रार्थना कीजिए। And he is talking all this, and the result is final blessing and the joy God can bring in your life and my life. वो ये सब कुछ बता रहा है और इसका परिणाम ये है कि अंतिम परिणाम ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और खुशी और पूरी तरह से आरोग्य लेकर आएंगे। We have to confess God. हमें परमेश्वर का अंगीकार करना होगा। In the book of Romans chapter 10 verse 10 it says like this. रोमी अध्याय 10 वचन 10 में इस तरह से कहता है, For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ये कहता है। What James is saying here is he is using Elijah as an example in this section. यहाँ पर याकूब इस वचन भाग में उदाहरण के लिए एलिया का उदाहरण उपयोग करता है। And how he offered his prayer in faith. कैसे उसने विश्वास से प्रार्थना की थी। In the final chapter, that is 5th chapter verses 13 to 18. हम याकूब की पत्री में हैं, अंतिम अध्याय यानी अध्याय 5 वचन 13 से 18 तक हम यहाँ पर देख रहे हैं। And when you look at these verses, you will notice that the value of prayer offered in faith is what is emphasized by James. यहाँ पर हम देखें तो हम पाएंगे कि प्रार्थना के मूल्य के बारे में यहाँ पर याकूब हमें बता रहा है। He is basically telling you and me that today you pray for your troubles or your problems and you have to pray in faith. वो सामान्य रूप में हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी परेशानी के लिए आज प्रार्थना कीजिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। And when I say faith, I mean sheer faith or complete faith or total faith. और जब मैं विश्वास कहता हूं तो इसका मतलब है कि निश्चित विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए। Believing in the God of the Bible that it is possible only through him. बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करना है कि निश्चय ये उसके द्वारा ही संभव है। God is delighted when we pray like that. जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। He is ready to answer our prayers like that. वो इस तरह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। And interestingly, James is using
a prophet as an example, the prophet Elijah. दिलचस्प बात यह है कि याकूब यहाँ पर एलिया भविष्यवक्ता का उदाहरण उपयोग करता है। He says in the 17th and 18th verse, वचन 17 और 18 में वो कहता है, Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इस तरह से ये वचन कहते हैं। An example of prayer is what is used by James. याकूब के द्वारा प्रार्थना के उदाहरण के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। And Elijah's prayer, Elijah was an individual. एलिया की प्रार्थना देखिए, एलिया एक व्यक्ति था। And very importantly, I want you to note the word that is used there. यहाँ पर जो शब्द उपयोग हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी ओर गौर करें। He was a man just like us. वो तो हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था। He prayed that it should not rain for 3.5 years. उसने प्रार्थना की कि 3.5 वर्ष तक मेह न बरसे। What is he trying to say to us? वो यहाँ पर हमें क्या कहना चाहता है? He is telling us, you can pray today. I mean, don't pray to stop the rain. देखिए, वो कह रहा है कि हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, आप बारिश रोकने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। What I'm trying to say is, for all your problems, for all your difficulty, you pray like Elijah in faith, definitely God will hear of your prayers. अपनी सारी समस्याओं के लिए आप परमेश्वर से एलिया के जैसे विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। If it is possible for Elijah, it is possible for you. अगर ये एलिया के लिए संभव था, तो ये आपके लिए भी संभव है। That's why that verse, he is a man just like us. और इसीलिए तो वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही मनुष्य था। He had his own weaknesses like how we have. हमारे जैसी उसकी अपनी कमजोरियां थी। He had his own needs like how we have. हमारे जैसी उसकी अपनी जरूरतें थी। He had his own temptations like how we have. हमारे जैसी उसकी अपनी परीक्षाएं थी। And he is pointing out very clearly, he was a man just like us, but he prayed in faith and he received what he wanted. वो बता रहा है कि वो तो हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने विश्वास से प्रार्थना की तो उसे जो चाहिए था वो मिला। Dear friends, are you praying for something that is so very difficult and impossible today? दोस्तों, क्या आज आप ऐसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि आज बहुत ही मुश्किल और असंभव दिखाई देती है? And I want to ask you, do you have faith that God is working and God is powerful? और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप में विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और परमेश्वर सामर्थी हैं? Do you fully believe and are confident in the power of God to do that? क्या आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं और ऐसा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर पूरा भरोसा करते हैं? And I want to tell you, this God always fulfills His word. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर हमेशा अपने वचन को पूरा करते ही हैं। Where did Elijah get the courage to pray to stop the rain? एलिया को ये साहस कहाँ से मिला कि वो प्रार्थना करे कि बारिश को या वर्षा को वो रोक दे? He depended on the promises of God. वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित था। This prayer is based on God's promise. ये प्रार्थना तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित प्रार्थना थी। In the book of 1 Kings chapter 8 verses 35 to 36, where God says like this. पहला राजा अध्याय 8 वचन 35 और 36 में परमेश्वर यहाँ पर इस तरह कहता है। And Solomon was praying. यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना कर रहा था। When the heavens are shut up and there is no rain because of your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name and turn from their sin because you have afflicted them, then hear from heaven and forgive the sin of your servants, your people of Israel. Teach them the right way to live and send rain on the land you gave your people for an inheritance. जब वो तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना।
इस तरह से यहाँ पर राजा सुलेमान जो है वो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। The only point I want to take out from this verse is that when people sin against God, He shuts the heavens. मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जब लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं तो वो आकाश को बंद कर देते हैं Rain doesn't come. और उस समय बारिश नहीं हुई थी The land suffers. और इसके कारण भूमि पर बहुत ही परेशानियां बढ़ी। God is reminding the people that I am in control. परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि मैं नियंत्रण करता हूँ। And Elijah knew fully well during the time of Ahab, the wickedness was so great, he knew that God will shut the heavens if he prays. और एलिया पूरी तरह से जानता था आहाब के समय में कि जब दुष्टता बढ़ती जाएगी तो निश्चय परमेश्वर वहाँ पर वर्षा बंद कर देंगे और इसीलिए वो परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करता है। And that's where we also get our idea to pray to God when we are in trouble and according to His promise. और यहाँ पर हमें ये विचार मिलता है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमेशा निश्चय हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करते चले जाना चाहिए। There is a beautiful verse in 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14. If my people who are called by my name will humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and answer their prayers. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस तरह से दूसरा इतिहास में यहाँ पर हमें बताया गया है। Friends, I want to tell you, if you could take only one thing from what I am sharing today, दोस्तों आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें से अगर आप केवल एक ही बात ले ले, God hears the prayers of ordinary people. कि परमेश्वर साधारण लोगों की प्रार्थनाओं को निश्चय ही सुनते हैं When it is offered in faith, जब वो विश्वास के साथ में की जाती है, when it is offered according to God's expectation, जब ये परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार की जाती है and according to His word as Elijah prayed. और जैसे एलिया ने प्रार्थना की ये तो बिल्कुल उसके वचन के अनुसार ही होनी चाहिए। And I want to tell you, you can pray today. आज आप प्रार्थना कर सकते हैं। A prayer of righteous person is powerful and effective. धर्मी जन के विश्वास की प्रार्थना बहुत ही सामर्थी होती ही है। You may ask this question, am I righteous? शायद आप ये सवाल पूछे क्या मैं धर्मी हूँ? If you think that you are not righteous, अगर आप ये सोचते हैं कि आप तो धर्मी नहीं हैं, I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ person accepts Jesus Christ as Lord and Savior, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता है he is made righteous by God. तो उसे परमेश्वर धर्मी बनाते हैं। That is not coming to you because of your ability. पर ये तो आपकी योग्यता के कारण आपके पास में नहीं आता है, It is given to you because of God's power. ये तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपको दिया जाता है। This righteousness is a gift from God that we have received. ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से वरदान है जो हम पाते हैं। When we believe in the Lord Jesus Christ and surrender our life to Him, He makes us righteous. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन उसे समर्पण करते हैं तो वो हमें धर्मी बनाते हैं। You can pray today. आज आप प्रार्थना कर सकते हैं, God hears you. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। And in the book of Romans we read like this, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इस तरह से यहाँ पर रोमियो अध्याय 5 वचन 17 हमें बताता है। Elijah was a man just like us. He prayed, God heard. एलिया तो हमारे जैसे ही मनुष्य था, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। James is telling you pray today. याकूब कहता आज तुम प्रार्थना करो, God hears your prayers. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number